Hello student, good morning. So today we are going to discuss chapter 5 which name is Kingdoms, Kings and Early Republic. So let's start this chapter. How some men became a rulers. Choosing a leader or rulers by voting is something that has become a common during the last 50 years or so. How did man become ruler in the past? Some of the rajas we read about the chapter 4 were probably chosen by a jana, the people, but around 3,000 years ago, we find some changes taking place in the ways in which rajas were chosen. Some men now became recognized as rajas by performing very big sacrifices. The Aswamedha or the horse sacrifice was one such a ritual. A whole horse was let loose to wander freely and it was guarded by the Raja's man. If the horse wandered into the kingdom of other rajas and they stopped it, they had to fight. If they allowed the horse to pass, it meant that they accepted that the Raja who wanted to perform a sacrifice was stronger than them. These Rajas were then invited to the sacrifice, which was performed by a specially trained priest who were rewarded with the gifts. The Raja who organized the sacrifice was recognized as a being very powerful, and all those who became a broad gift for him. अब देखिए यहाँ पे बताया क्या गया है। जैसे कि अभी हम जो देखते आ रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे कि हम इलेक्शंस करते हैं, राइट। हम वोट करते हैं पर्टिकुलर, काफ़ी सारे लोग मिलके एक पर्टिकुलर पर्सन को वोट करते हैं। अगर उसे बहुत ज़्यादा जो है वोटिंग मिलती है तो क्या होता है, वो जीत जाता है और वो रूलर बनता है। इट्स एज सिंपल एज लाइक आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस चैप्टर। Like, if I'll give you the example of Congress and BJP, suppose I'll give a vote to the BJP. Okay, there is so many members who are going to give the vote to the BJP person. Fine. So what going to be happen? Congress will automatically lose the election, right? So there is a strategy the way we are taking the elections here. But what happens before, like मतलब 3,000 साल पहले कैसा होता था? अभी तो हम समझ में आ रहा है हमें कि जो भी 50 साल से हो रहा है कि हम इलेक्शंस करवाते हैं, पर्टिकुलर पर्सन को बहुत सारा वोट मिलता है तो वो जीतता है तो वो रूलर बनता है। लेकिन पिछले 50 साल में किस तरह से होता था, मतलब 50 साल के भी पहले की बात की जा रही है, सपोज़ 3,000 साल पहले की बात की जा रही है, तो उस टाइम पे क्या होता था, किस तरह से बनते थे? तो देखिए वहाँ पे क्या होता था, कई सारे राजा जो होते थे, अश्वमेधा और हॉर्स जो घोड़े होते थे उनका सेक्रीफाइस किया जाता था। लाइक उनको जैसे कि मान लीजिए अपने घोड़ों को भेज दिया जाता था इधर उधर भटकने के लिए, और जब कभी किसी राजपाट में किसी दूसरे राज्य में वो चला जाता था, अगर कोई दूसरा राजा उसे रोक देता था, मतलब अगर वो उसे वहाँ पे रोक दिया तो क्या होता था कि मतलब वहाँ पे फिर लड़ाई होती थी, यानी घोड़े का सेक्रीफाइस होगा, उसकी बलि दी जाएगी। इस तरह की कई सारी चीज़ें होती थी और इस तरह से जो भी पावरफुल पर्सन है वो सामने आता था, मतलब लड़ाई होती थी तो सामने आता था और फिर वो जो है वो पूरा एम्पायर संभालता था। तो इस तरह की चीज़ें कुछ उस समय की जाती थी। अब चलिए देखते हैं हम आगे। The Raja was a central figure in this ritual. He often had a special seat or throne or a tiger skin his charioteer, who was his companion in the battlefield and witnessed his exploits, chanted tales of his glory. His relatives, especially his wives and sons, had to perform a variety of minor rituals. The other Rajas were simply spectators who had to sit and watch the performance of the sacrifice. Priests performed the ritual, including the sprinkling of sacred water on the king. The ordinary people, the wish or the Vaishya also brought gifts. However, some people, such as those who were regarded as Shudras by the priest, were excluded from the many rituals. अब देखिए होता क्या था, इस सारी चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए कई तरह की रिचुअल्स जो होती थी वो की जाती थी। अब रिचुअल में बेसिकली किया क्या जाता था, जो चैंट्स किए जाते थे, मतलब कई तरह के मंत्रों का उच्चारण होता था। जैसे कि हम बेसिकली अभी भी जो पूजा देखते हैं तो उसमें कई तरह के मंत्रों का उच्चारण होता था। जो पंडित होते थे, जो प्रीस्ट होते थे, वो क्या करते थे, अक्षत और कई सारी चीज़ों का उनके ऊपर छिड़काव करते थे। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे मूवीज़ में होता है, जब कोई राजा युद्ध लड़ने जा रहा है या कभी कोई युद्ध जीत के आता है तो किस तरह से उसका वेलकम किया जाता है, तो उस तरह की चीज़ें की जाती है।
फिर उनकी ग्लोरी हिस्ट्री के बारे में बताते थे, मतलब कहाँ कहाँ वो जीते हैं, कहाँ कहाँ से उन्होंने अपना राजपाट जो है अपने हक में ले लिया लड़ाई से। तो इस तरह की चीज़ें जो है तब की जाती थी और बताई जाती थी। इसमें से भी जो शूद्रास होते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर हर किसी को एक जाति भाव में बांट दिया गया था। जैसे कोई पंडित है तो कोई ब्राह्मण में आ गया, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है। तो इस तरह से सबकी क्या थी, अब अलग अलग कैटेगरी में सबको बांटा गया था। तो इन पूजाओं में जो होता था, जो शूद्रास होते थे उनको यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया जाता था, मतलब उनको बेसिकली नहीं बुलाया जाता था। अब यहाँ पे जो एक हाईलाइटेड पैराग्राफ दिया गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये अथर्ववेद और यजुर्वेद के बारे में बताया गया है यहाँ पे। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पे आप देख सकते हो एक जो है बाउल टाइप की चीज़ रखी गई है। देखिए उसके बारे में थोड़ा सा जो है बताया गया है, मैं उसको पढ़ के आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। पेंटेड ग्रेवेयर plates and bowls are the most common vessels made out of a painted graveware. These are extremely fine to touch with a nice smooth surface. Perhaps those were used on a special occasion for important people and to serve a special food. अब देखिए ये जो वेसल आपको देखने को मिल रहा है, ये ज़्यादातर ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट वेसल्स होते थे वो क्या होते थे, ग्रे कलर के होते थे। और ग्रे होने के साथ साथ क्या होते हैं, एक्सट्रीमली फाइन होते थे, टच में काफ़ी स्मूथ होते थे, अच्छे होते थे बेसिकली। तो इन बर्तनों को क्या होता था, स्पेशल ओकेजन पे निकाला जाता था। सपोज़ मान लीजिए किसी राजा ने किसी दूसरे राजा को डिनर के लिए इनवाइट किया है, तो उस स्पेशल इनविटेशन में, मतलब किसी तरह का कोई स्पेशल ओकेजन है, तभी इन बर्तनों को निकाल के उसमें यूज़ किया जाता था और स्पेशल फूड्स के साथ यूज़ किया जाता था, मतलब कुछ अच्छा अच्छा खाना बना के बेसिकली यूज़ किया जाता था। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है जनपदास। The rajas who performed these big sacrifices were now recognized as the being rajas of Janapadas rather than the Janas. अब देखिए क्या होता था, जो भी राजा ये बहुत बड़ा जो ये सेक्रीफाइस होता था, जो हॉर्सेस का होता था, अश्वमेध का, ये जो जो भी कर लेता था वो बहुत बड़ा राजा के रूप में जाना जाता था जनास में। The word Janapada literally means the land where the Jana set its foot and settled down. Basically जो वर्ड है जनपदा, इसका लिटरली जो मीन है वो क्या है, जो भी जना है, जना मतलब लोग, वो अपना पैर जो है कहीं रख के अपने आप को जमा ले, मतलब बेसिकली कहीं सेटल डाउन हो जाए, इससे उनका मतलब है। सम इम्पॉर्टेंट जनपदास आर शोन ऑन मैप 4 पेज 49। अगर आप मैप 4 पेज 49 पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको कई सारे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जनपदास के वो वहाँ पे बता दिए गए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। Now we'll see the archaeologists have excavated a number of killa in Delhi. I forgot the line. Archaeologists have excavated a number of settlements in this Janapadas, such as the Purana Killa in Delhi, Hastinapur near Meerut, and the Atranji Khera near Etaha. The last two are in the Uttar Pradesh. They found that the people lived in the huts and kept cattle as well as the other animal. They also grew a variety of crops: rice, wheat, barley, pulses, sugarcane, sesame and the mustard. अब देखिए ये जो है कई तरह के आर्कियोलॉजिस्ट ने कई तरह के मतलब जो है सज्जना पदार्थ के सेटलमेंट्स को देखा है, जिस तरह की चीज़ें वहाँ पे थी, जैसे लाइक पुराना किला है, हस्तिनापुर का जो है वो जो अतरंजी खेरा है, ये सारी चीज़ें क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं और ये सब चीज़ें वहाँ पाई गई हैं। अब चलिए हम देखते आगे, यहाँ पे जो और तरह की वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो थी, मतलब यहाँ की जो मेन फसलें थी जो उगाई जाती थी वो कौन कौन सी थी, राइस, व्हीट, बैर्ली, पल्सेस, शुगर केन एंड सीसम एंड मस्टर्ड। तो ये सारी जो थी क्या थी, इम्पॉर्टेंट फसलें थी यहाँ की बेसिकली। जैसे मान लिया जाए अगर किसी हम स्टेट की बात करें तो हर स्टेट में क्या होता है, अपना अपना एक स्पेसिफिक क्रॉप होता है। सपोज़ मान लीजिए अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा गेहूँ उगाया जाता है। अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूँ तो वहाँ के क्या होता है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे राइस उगाया जाता है। तो इस तरह से इनका भी अपना एक क्या था, स्पेशल क्रॉप था। अब चलिए हम देखते हैं आगे। They made earthen pots. Some of these were grey in color, other were red. One special type of pottery found at this site is known as painted greyware,
As is obvious from the name, these grey pots had a painted design, usually simple lines and geometric pattern. अब देखिए ये यहाँ पे जो बताया गया है ये पॉट के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में मैंने एक इन्फो आपको दी थी कि किस तरह का था, कब वो यूज़ किया जाता था। तो इस तरह के जो पॉट्स थे ये ग्रे पेंट से ज़्यादातर पोते जाते थे, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था, पेंटेड ग्रे वेयर भी कहा जाता था। अब देखिए इसमें होता क्या था, इसमें कई तरह की पेंट से डिज़ाइन बनाई जाती थी। तो समटाइम्स इट कैन बी सिंपल लाइंस बट समटाइम्स देयर इज़ अ जियोमेट्रिक पैटर्न। मतलब समझ जाइए जियोमेट्रिक पैटर्न रिलेटेड टू देयर स्टेट और समथिंग, दे ड्रॉ सच लाइंस। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है महाजनपदास। अभी तक हमने पढ़ा था जनपदास के बारे में, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे महाजनपदास। एज यू कैन सी हियर देयर इज़ अ वर्ड महा, दैट मीन्स दैट इज़ सुपेरियर फ्रॉम द जनापदास. So, about 25 years ago, some Janapadas became more important than others and were known as a Mahajanapadas. Some of these are shown on a map. Fourth point is most Mahajanapadas had a capital city. Many of these were fortified. This means that the huge walls of wood, brick or stone were built around them. अब देखिए जब महाजनपदास की बात की जा रही है तो ये ऐसे होते थे जो सबसे बड़े होते थे और इनका अपना एक कैपिटल सिटी होता था। यहाँ पे बहुत सारे किले होते थे इनके, और जो किले होते थे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत बड़ी उनकी दीवार होती थी, स्टोन्स और ये सारी चीज़ों से बना हुआ होता था। अब चलिए देखते हैं आगे। Forts were probably built because people were afraid of attack from other kings and needed a protection. अब forts जो है इस तरह से इसलिए बनाई जाती थी ताकि जो दूसरे लोग हैं वो उस पर अटैक करने से डरे। It is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building really large, tall and impressive walls around their cities. Also in this way, the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. Building such huge walls required a great deal of planning. Thousands of, if not lakhs of bricks or stones had to be prepared. This in turn meant enormous labor provided possibly by thousands of men, women and children, and resources had to be found for all of this. अब देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं कई सारे लोग जो है मिल के बनाते थे, मतलब इसके लिए बहुत बड़ी डील होता था लोगों के बीच में। मतलब बेसिकली सपोज मान लीजिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, जब भी हम कोई घर बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं किसी को कि आपको एक घर जो है बनाना है, तो कई सारे लोग जो है कई तरह के रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से कई सारे स्टोन्स लगाने के लिए सारे लोग मिल के बेसिकली क्या करते हैं, ये बहुत बड़ा जो किला होता है, जो फोर्ट है, इसको प्रिपेयर करते हैं। The new rajas now began maintaining armies. Soldiers were paid regular salaries and maintained by the king throughout the year. Some payments were probably made using a punch-marked coins. This is the illustration on page 84. You will read more about this coin in chapter 8. अब देखिए क्या होता था, कई सारे राजा जो होते थे वो अपनी मिलिट्री बना के रखते थे, क्योंकि कभी भी जब हमला हो रहा है या होने वाला है तो ऐसे में कौन उनका बचाव करेगा, जो उनकी अपनी मिलिट्री होगी। तो वो उसको क्या करते थे, बना के रखते थे, और उनको जो है रेगुलर सैलरी दी जाती थी हर महीने। अगर कभी कभी उनकी सैलरी नहीं मिलती है तो क्या करते थे, उन्हें पंच वाले कॉइन्स दिए जाते थे। सपोज मान लीजिए जो भी उनकी राजकीय मुद्रा होती होगी जिस तरह से, वो सारी चीज़ें उनको दी जाती थी। अब देखिए हम देखते हैं आगे टैक्सेस। एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपदास वर बिल्डिंग अ ह्यूज फोर्ट्स एंड मेंटेनिंग अ बिग आर्मीज, दे नीडेड अ मोर रिसोर्सेज। अब जो भी महाजनपदास होते थे, अब देखिए उनके पास क्या होता था कि वो बड़ी बड़ी फोर्ट्स बनाते थे, यानी बड़े बड़े किले बनाते थे, और कई सारी बड़ी बड़ी आर्मी को क्या करते थे, मेंटेन करते थे। अब इतना कुछ मेंटेन करने के लिए उनको भी तो रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती होगी, तो चलिए देखते हैं वो किस तरह से करते थे। एंड दे नीडेड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट दिस, सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेशनल गिफ्ट्स ब्रॉट बाय पीपल, एज इन द केस ऑफ द राजा ऑफ महाजनपदास, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग अ रेगुलर टैक्सेस। अब क्या हो गया कि अब कोई आए और फिर कुछ गिफ्ट दे या कोई ऐसी चीज़ें उनको दे तब जाके उनका काम हो, तो ये चीज़ जो थी थोड़ी इरेगुलर टाइप से थी। तो उन्होंने क्या किया, इसके बदले में टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया रेगुलर बेसिस पे। इसका अगर मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दूँ तो आप इस चीज़ से समझ सकते हो, आपके जो भी मम्मी पापा काम करते हैं, राइट, इफ़ दे आर वर्किंग, उन्हें क्या देना होता है, इनकम टैक्स देना होता है, फाइन। तो क्या होता है, अब एक बात बताइए, अगर सरकार
हम कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं या कोई भी सरकार जो है कहीं पे भी फंड रेज कर रही है, कहीं पे भी पैसा खर्च कर रही है, तो सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा, राइट। तो कहीं ना कहीं से उनके पास पैसा जाना है, तो क्या करते हैं वो भी टैक्स कलेक्ट करते हैं। यानी हमारी सैलरी से जो टैक्स डिडक्ट होता है वो कहीं ना कहीं सरकार को मिलता है, और फिर वही पैसा घूम फिर के हमारी ज़रूरतों के हिसाब से या फिर हमारी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग खर्च किया जाता है। Taxes on crops were the most important. This was because most people were farmers. Usually, the tax was fixed at 1/6 of what was produced. This was known as a bhaga or a share. अब देखो क्या होता था, जो भी लोग थे उस समय में क्या होता, सबसे ज़्यादा किसानी करते थे, तो किसानी का जो भी उनका प्रॉफिट होता था उसका 1/6 पोर्शन जो है यहाँ पे दे दिया जाता था, और इसे ही भागा या शेयर के नाम से जाना जाता था। There were taxes on the craftsperson as well. This could have been in the form of labor. For example, a weaver or smith may have had to work for a day every month for the king. Herders were also expected to pay taxes in the form of animals and animal produce. There were also taxes on goods that were brought and sold through trade. And the hunters and the gatherers also had to provide a forest produce to the Raja. अब देखो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो की जाती थी और टैक्स को कलेक्ट किया जाता था। अब चलिए देखते हैं आगे, चेंजेस इन एग्रीकल्चर। अब खेती में किस तरह का चेंज हुआ था अब वो देखेंगे हम यहाँ पे। देयर वर 2 मेजर चेंजेस इन द एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। वन वाज the growing use of iron ploughshare, and this meant that the heavy clay soil could be turned over better than with a wooden ploughshare, so that the more grain could be produced. Second, people began transplanting paddy. This meant that instead of scattering seed on the ground from which plants would sprout, saplings were grown and then planted in the fields. This led to increase the production as many more plants survived. However, it was back breaking work. Generally, slave men and women and the landless agricultural laborer had to do this work. अब देखिए क्या होता था, जो बहुत बड़ा जो 2 चेंज आया था वो ये आया था कि पहले क्या होता था, जो भी प्लव शेयर होता था, बेसिकली क्या होता, जो भी सॉइल होता था उस पर पहले एक एक जगह पे जाके बहुत सारी चीज़ों को उगाई जाती थी। इससे क्या होता था, कहीं ना कहीं ग्रेन जो प्रोड्यूस होता था वो थोड़ा और प्रोड्यूस्ड हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हो सके, इसलिए किया गया। दूसरा, जो भी ट्रांसप्लांटिंग पैडी होता था, मतलब बेसिकली जिस तरह से सीड को छींट दिया जाता था, राइट, और उसके बाद उसमें प्लांट्स जो हैं वो निकलते थे, तो उसके बाद क्या होता था, कहीं ना कहीं बेसिकली वो चीज़ सही से हो नहीं पाती थी, राइट, क्योंकि एक जगह पे बहुत सारे प्लांट हो जाएं तो क्या होगा, उनका विकास अच्छे नहीं होगा। तो क्या किया जाने लगा, जैसे कि आपने धान की खेती में देखा होगा, क्या होता है, एक जगह पे बहुत सारी धान को छींट दिया जाता है ताकि वहाँ पे पेड़ उग जाए, और फिर जैसे ही वो पेड़ उग जाते हैं उसके बाद क्या किया जाता है, उनको उखाड़ के अलग अलग लगाया जाता है। सेम उसी तरह का काम यहाँ पे किया जाने लगा। तो ये 2 जो है मेन चेंजेस यहाँ पे आए। A closer look of Magadha. Find a Magadha on a map 4, page 49. Magadha became the most important Mahajanapadas in about 200 years. Many rivers such as the Ganga and the Sun flowed through a Magadha. This was the important for a transport water supplies, making the land fertile. Parts of Magadha were forested. अब यहाँ पे जो थी नदियाँ थी, इस वजह से क्या था, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ भी कई तरह से इसमें बिज़नेस भी किया जाता है, जैसे वाटर सप्लाई किया जा रहा है, लैंड को फर्टाइल किया जा रहा है, तो इस तरह की कई सारी चीज़ें जो है यहाँ पे की जाने लगी। अब चलिए देखते हैं आगे। Elephants which live in the forest could be captured and trained for armies. Forests also provide a wood for building houses, carts, and chariots. Besides this, there were iron ore mines in the region that could be tapped to make strong tools and weapons. Magad had 2 very powerful rulers, Bimbisara and Ajatasattu, who used all possible means to conquer other Janapadas. Mahapadma Nanda was another important ruler. He extended his control up to the northwest part of the subcontinent. Rajagira in Bihar was the capital of Magadha for several years. अब जो यहाँ पे बताया गया है, जिसका राजगिरी का ये जो था कैपिटल था मगध का काफ़ी सालों तक, ठीक है। बाकी उसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, आप एक बार पढ़ेंगे इसको तो आप समझ सकते हैं।
नाउ हियर सी लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्रा। अब देखिए, अब पाटलिपुत्रा जो है उसको पटना के नाम से जाना जाता है करंटली में, और ये जो है बाद में जो जैसे कि पहले राजा की रहा था, उसके बाद वो कैपिटल चेंज होके पाटलिपुत्र बन गया। More than 2300 years ago, a ruler named Alexander, who lived in Macedonia in Europe, wanted to become a world conqueror. Of course, he didn't conquer the world but did conquer the parts of Egypt and West Asia, and came to the Indian subcontinent, reaching up to the banks of the Beas. When he wanted to march further eastwards, his soldiers refused. They were scared, as they had heard that the ruler of India had a vast armies of foot soldiers, chariots and the elephants. अब जो दूसरा राजा था वो इंडिया में आके क्या करना चाहता था, हमला करना चाहता था बेसिकली, ताकि कई सारी चीज़ों को जीत सके। पर उसे कहीं ना कहीं से क्या था, इस बात का डर भी था, क्योंकि जो इंडिया के रूलर्स थे इनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी और सोल्जर्स थे, तो इस तरह से क्या था, कहीं ना कहीं उनको डर था और इस वजह से उन्होंने हमला नहीं किया। अब देखिए आगे, a closer look of Vaji. With Magadha became a powerful kingdom, Vaji with its capital at Vaishali. वैशाली जो है वो बिहार को कहा जाता था, यानी बिहार का जो काफ़ी पुराना नाम था क्या था, वैशाली, वॉज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज गना और संघा। इन गना और संघा दे वर नॉट वन बट मैनी। सी देखिए यहाँ पे गना और संघा के बारे में बताया गया है। गना इज़ यूज्ड फॉर ग्रुप दैट हैज़ मैनी मेंबर्स and Sangha is used for means organization or association. So now sometimes even when the thousands of men ruled together, each one was known as the Raja. These Raja performed rituals together. They also met in assemblies and decided what had to be done. अब देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या बताया गया इस पैराग्राफ में, वो आपको समझा देती हूँ। अब होता क्या है, जैसे देखो कई सारी जगह के जो राजा होते थे, कई सारे स्टेट के राजा जब एक साथ मिलते थे तो क्या करते थे, वो डिसाइड करते थे, मतलब सारे प्लान्स और स्ट्रेटेजी डिसाइड की जाती थी। जैसे सपोज मान लीजिए किसी स्टेट में किसी राजा ने कुछ चीज़ परफॉर्म की जिसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो दूसरे राजा उससे इंस्पायर होंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे और वो चीज़ वो अपनी जगह पे इम्प्लीमेंट करेंगे। सपोज़ मान लीजिए, या फिर जो दूसरा एग्जांपल मैं अगर दूँ समझाने के लिए, सपोज़ मान लीजिए कोई बैठक हुई और कोई 2-3 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बताया कि ये स्टेट सही नहीं है, यहाँ पे चीज़ें सही नहीं हो रही है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे फेस की जाती है, तो क्या करेंगे, बाकी के स्टेट मिलके फिर उस पर हमला किस तरह से किया जाए इसकी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती थी, यहाँ पे की जाती थी। अब देखिए यहाँ पे जो है फिर से एक हाईलाइटेड पैराग्राफ बताया गया है, इसे आप पढ़ सकते हैं। ये जो अजातशत्रु और जो वजिष्ठ थे उनके बारे में बताया गया है, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। आपको अगर कोई भी डाउट आता है इसको पढ़ने के बाद तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल क्लियर योर डाउट। सो लेट्स सी द लास्ट पैराग्राफ हियर। Rajas of powerful kingdom tried to conquer the Sanghas. Nevertheless, this lasted for a very long time, till about 1500 years ago, when the last of the Ganas or Sanghas were conquered by the Gupta rulers, about whom you will read in the chapter 10. अब इनके बारे में जो है हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। जो भी राजास होते थे, ये क्या होते थे, बहुत ही पावरफुल होते थे, इनका अपना किंगडम होता था जो कई सारे राज्यों को जीत के वो बनाते थे। तो देखिए इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आई होप एवरीथिंग यू हैव अंडरस्टैंड, बट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू कैन आस्क मी एनी टाइम। एंड या दिस चैप्टर इज़ गोइंग टू बी एंड हियर, एंड मैं जब भी इसका वीडियो अपलोड करूँगी इसके साथ ही इसके चैप्टर के नोट्स भी, यानी आंसर जो है वो मैं आपको भेज दूँगी, उसकी स्क्रीनशॉट आप उसको प्लीज़ देख के लिख लीजिएगा और अपनी कॉपी कंप्लीट रखिएगा। थैंक यू फॉर द डे।